रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया है ना? यस सर, चलो थैंक यू। ओके चलो, तो हम लोग वेक्टर्स कहाँ तक खत्म कर लिए बेटा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी खत्म कर लिए थे, कैसे रिजॉल्व करना, उसके बाद यूनिट वेक्टर पढ़ लिए थे, उसके बाद ट्रायंगल लॉ, पॉलीगोनल लॉ वगैरह भी कर लिए थे। चलो मोशन इन प्लेन चलते हैं जल्दी से। मोशन in plane, or it is known as a two dimension motion beta. A two dimension motion can be analyzed by splitting it into how much beta? One is perpendicular one dimension and with respect to time as of your common variable. Okay, so we'll be try to resolve that one into a perpendicular directions beta. कोई भी एक 2D dimension move कर रहा है, so we'll try to resolve it along your x axis and as well as of your y axis. तो हम लोग 2D dimension में क्या कर रहे हैं? टू परपेंडिकुलर वन डायमेंशन मोशन। तो अब ध्यान के चलो, बेसिकली ये एक वेक्टर है, दिस इज अ फंक्शन बेटा, दिस इज अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ योर x है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है बेसिकली। सो आई एम टेकिंग सम फंक्शन, सम कर्व लिया है मैंने, आई एम टेकिंग अ कर्व राइट नाउ, दिस कर्व इज लाइक नाउ गोइंग फ्रॉम योर a टू b। कोई भी एक पॉइंट ले लो उसके अंदर, मान के चलो दिस इज सम पॉइंट, इस पॉइंट p के, इस पॉइंट के पास अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान के चलो दैट विल बी गिविंग मी द वेलोसिटी ऑफ द गिवन पार्टिकल। Is velocity, if it is making an angle theta, so I can resolve it into your x-axis and as well as of your y-axis. इस velocity को अगर मैं वन डायमेंशन में परपेंडिकुलर रिजॉल्व कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा, जहां पर थीटा है वहां पर cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा vy is equals to v into sin थीटा, isn't it? तो इस वेक्टर को मैं अगर टू डायमेंशन में लिख रहा हूं बेसिकली, तो x एक्सिस में हो गया x vx और y एक्सिस में हो गया vy, तो v बार हो गया vx i कैप प्लस vy j कैप, तो इसको हम लोग टू डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो उसका, जैसे वेक्टर में निकालते हो, सो मॉड ऑफ v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, and if you are taking the angle for this one, this angle you just drop a perpendicular right now here, so this tan theta will be equal to vertical by horizontal. Vertical is nothing but vertical velocity, this is nothing but of your vy, so it is vy by vx, so angle can be calculated with the formula theta is equal to tan inverse of vy by vx. Only this is the thing which is completely playing the role in the 2D dimension beta. So if any vector is been moving in the x and y plane, the thing you need to do is always resolve it along x axis and y axis. जहां पर थीटा बन रहा है that will become automatically cos theta and the other one will become for me sin theta. तो वही तो बोल रहे हैं ना, a 2D dimension can be analyzed by splitting it into how many beta? Two perpendicular components. We are splitting it into your two perpendicular 1D dimension motions with the time t as of your common variable, because y is a function of your x. x के पास हम लोग क्या ले रहे हैं? टाइम, isn't it? और y की वैल्यू कहां ले रहे हैं? along y axis part of relation. So vector right now I'm taking right now for the given condition. So splitting of the given vector in the two dimension is called as of your 2D dimension. ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिख रहे हैं? v bar is equals to vx into your I cap plus vy into j cap, and magnitude of the v will be equal to under root of vx square plus vy square, और एंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे? tan theta is equals to vy by vx part. ये क्लियर है सभी को? Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. चलो वेरी गुड। इन 2D डायमेंशन में बेटा along x axis वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे? dx by dt. एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? d into vx by dt, or vx into dv by dx. Acceleration as a function of time, acceleration as a function of your position. अगर डायरेक्टली टाइम दी, वेलोसिटी टाइम में दे दिया तो ये फॉर्मूला ले लो बेटा। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ योर x दिया, देन यू यूज द फॉर्मूला a is equals to v into dv by dx. ठीक है, तो इन 2D डायमेंशन अलोंग x एक्सिस vx को हम लोग लिखते हैं dx by dt और एक्सेलरेशन को लिखते हैं d into vx by dt. If time velocity is not given as a function of time, then you write it as vx into your dvx by your dt. I can even write this one as like this. Acceleration along your x-axis is also represented as of your d square into your x divided by your dt square. Double differentiation से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. Along y-axis the same thing. Velocity along y-axis is dy by dt and acceleration along y-axis is dy by dt, or vy into your dv by your dy part of relation. So I got accelerations along your x-axis and y-axis. Velocity is also along your x-axis and as well as of your y-axis. Is this thing clear for everyone? Yes, sir. Is this thing clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशन की वेलोसिटी x एक्सिस कैसे लिखते हैं, y एक्सिस कैसे लिखते हैं? नेक्स्ट थोड़ा सा दिया है यहाँ पर. A particle moves in the 2D such that its position depends on the time as x दे रखा है as a function of time बेटा, क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज होगा x की वैल्यू भी चेंज होगी.
t की जगह 0 लिख लो तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, t की जगह 1 रख लो तो t इंटू 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 इंटू 1 हो गया 1 प्लस 3, तो ये 4 प्लस 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 प्लस 4, दैट विल बिकम फॉर मी एक्सक्यूज 9, मी सर, ऐसा, ठीक है ना। तो सर एस बेटा कैन यू प्लीज गो स्लो? क्या बोला? आप थोड़ा हल्लो पढ़ा सकते हैं, मतलब अब जल्दी हाँ ठीक जल्दी। है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हम लोग क्या बोल रहे थे 2D डायमेंशन के अंदर, इन 2D पार्ट ऑफ रिलेशन हम लोग x एक्सिस को अगर लिख रहे हैं तो vx लिखेंगे और y एक्सिस में लिख रहे हैं तो vy लिख लेंगे। ये पॉइंट क्लियर है ना सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ये देख लो बेटा, एक बार एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, ए पार्टिकल इज मूविंग इन 2 डायमेंशन बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग इन द 2 डायमेंशन सच दैट इट्स पोजीशन इज डिपेंडिंग ऑन द टाइम एज x इज इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, y दे रखा है 5t प्लस 7। अब पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। दे क्या रखा है प्रॉब्लम में मेरे पास, x एक्सिस दे रखा है और y एक्सिस दे रखा है, और ही इज आस्किंग मी व्हाट बेटा, वेलोसिटी, वेलोसिटी एट व्हाट टाइम, t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। अब मैंने बोला था आपको अगर x दिया रखा है, वेलोसिटी अगर x दे रखा है x फंक्शन में, तो vx इज इक्वल्स टू dx by dt लगा दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो x दे रखा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, तो व्हाट आई कैन यूज द फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस, vx इज इक्वल्स टू dx by dt, ठीक है ना। तो x की जगह ये डाल दो, तो यहाँ पर डाल दो तो क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, बेसिकली आई विल राइट हियर राइट नाउ, vx विल बी इक्वल टू d, x की जगह मैं डाल रहा हूँ 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस ऑफ योर 3 डिवाइडेड बाई योर dt। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये फिर देखो बेसिकली d इंटू 4 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर कितना होगा बेटा 2t 2t, तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 2t दैट इज इक्वल टू 8t आ गया। फिर 2t को डिफरेंशिएट करो, 2t को डिफरेंशिएट कैसे करोगे बेटा, d इसमें से 2 बाहर निकालो तो dt by dt आ जाएगा, तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना मेरे पास 2। 2 ये 3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, 0। 0। ये सभी को यस vx का सर, कंपोनेंट आ गया सभी को, Yes, तो sir. ये x axis था, तो I got the velocity along x axis. Now y axis is also given for me, so we calculate the velocity along y axis. Vy is equals to dy by dt. Differentiate this one. तो differentiation में कैसे लिखोगे, d into differentiation of your 5t plus of your 7 divided by your dt. इसमें 5 constant है, 5 बाहर निकालो, differentiation of dt by your dt plus a differentiation of 7 will become 0. dt gets cancelled. So how much I'm getting right now, 5. आया, 5 ठीक है ना। तो नाउ आई गॉट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड आई गॉट द वेलोसिटी अलोंग योर y एक्सिस। देखो अब पूछ रहा क्या प्रॉब्लम में, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड। vy में तो t नहीं है, तो vy तो चेंज नहीं होगा, vx में t है, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। vx की वैल्यू कितनी बनी बेटा, vx की वैल्यू कितनी बनी, ये t के अंदर 2 डाल दो, 8 into 2 plus 2, 8 2 is 16, 16 plus 2 18, तो ये हो गया 18। vy में तो t नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, तो vy हो गया 5 मीटर पर सेकंड। सो आई गॉट vx एंड आई गॉट vy। तो अब ये vx vy दोनों है, यानी ये हो गया मेरे पास vx इस डायरेक्शन में और ये हो गया vy इस डायरेक्शन में, तो दोनों जब परपेंडिकुलर हैं तो इसका रिजल्टेंट आएगा इस तरह से यहाँ पर, एंड दिस विल बी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ये कैसे निकालोगे, v बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2 इंटू vx इंटू vy इंटू कॉस ऑफ ईवर, इन दोनों के बीच में एंगल कितनी है बेटा 90 डिग्रीज, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा रहा हूँ, cos 90, cos 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 होगा, तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर लिख रहा हूँ मैं बेसिकली। तो vx की वैल्यू आ गई 18 होल स्क्वायर और 5 की होगी 5 स्क्वायर, तो इसको सिंपलीफाई कर लो, दैट विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ v बार, ठीक है ना, ठीक है। यस सर, क्लियर। नाउ एंगल निकालना, एंगल के लिए क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने वर्टिकल कंपोनेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 5, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 18, सो tan थीटा इज इक्वल टू v by vx दैट इज 5 by 18 r is equals to tan inverse of 5 by 18। is it यस सर, is it clear? ये प्रॉब्लम में कुछ डाउट है क्या, देख लो सभी को, इज दैट प्रॉब्लम क्लियर फॉर एवरीवन, isn't it? तो कभी भी टू डायमेंशन का कंडीशन दे रहा है x एंड y, तो इंडिविजुअली आप vx निकालोगे, इंडिविजुअली आप vy निकालोगे और उसका रिजल्टेंट निकालोगे। अगर एंगल पूछ रहा है तो एंगल निकालोगे बेसिकली। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वन। Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? कुछ डाउट है इसके अंदर?
पक्का? पक्का सर। यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन करा दूं क्या इस पे? विल गेट मोर क्लैरिटी। यहीं पर ही करा देता हूँ, ठीक है चलो, नीचे स्पेस हो गई ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। रफली ले रहा हूँ मैं बेसिकली क्वेश्चन। मान के चलो ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन। XY प्लेन मतलब 2D हो गया। XY प्लेन मतलब क्या हो गया? 2D हो गया। विथ वेलोसिटी v bar is equals to 2 into I cap plus 3 into your x j cap। ठीक है, v is equals to कितना दिया? 2 into I cap plus 3 into your x j cap दिया मैंने। नाउ क्या पूछ रहा हूँ मैं? फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। फाइंड द, बेटा म्यूट कर लो बेटा, आप लोग रिकॉर्डिंग में चले जाएगा पूरा, वरना आप लोग प्लीज ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, चलो। A particle moves in the xy plane with a velocity v bar is equal to 2i plus 3x j cap. Find the equation of the trajectory. Find the equation of the trajectory. Trajectory मतलब path. Given that the particle was initially at the origin। पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप उसको सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन समझो, बोल क्या रहा है बेसिकली। ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन। ए पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन, यानी ये हो गया x का और ये हो गया y का। ये हो गया XY प्लेन, ये हो गया y और ये हो गया x। कितनी वेलोसिटी से? वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस दे रखा है और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस दे रखा है। vx दे रखा है 2 into I cap और vy दे रखा है 3x into j cap। और इन दोनों की रिजल्टेंट हो गई यहाँ पर, ये हो गया v बार, तो ये हो गया v बार, ये हो गया v बार मतलब vx into I cap प्लस vy into j cap। तो ये हो गया vx की वैल्यू और ये हो गई vy की वैल्यू। उतना ही ना? ये बात क्लियर है सभी को? एक्सक्यूज मी सर। इज इट क्लियर? चलो एस बेटा। सर रिजल्टेंट में अंडर रूट में हाँ, ले लेते सर हम। नहीं, वेक्टर में लिखा ना मैंने अभी। ओके अभी तो वेक्टर में लिखा है। ओके अगर मैग्नीट्यूड में लिखते तो, अब मैग्नीट्यूड में लिखते तो यहाँ पर लिखा दे। वो मैंने कहाँ पर गया इसके लिए? मैंने यहाँ पर आपको देखो, इसका ये जो है मैग्नीट्यूड है, ऐसे लिखोगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखो कहाँ गया ये वाला। देखो वेक्टर में जब लिख रहे हो तो vx और vy हो जाएगा। ठीक ओके है, सर। मैग्नीट्यूड में जब लिख रहे हो तो अंडर रूट में आएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके यस सर। ओके चलो, यहाँ तक हो गया ना, तो यहाँ पर चलते हैं। चलो, तो क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन द XY प्लेन विद वेलोसिटी। ये हो गया x एक्सिस का कंपोनेंट और ये हो गया y एक्सिस का कंपोनेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है। तो x एक्सिस में 2i है और y एक्सिस में कितना है मेरे पास? 3x into your j cap पार्टिकुलेशन। अब करोगे क्या? x एक्सिस पे है मेरे पास, तो कितना है vx निकाल सकता हूं मैं। vx is equals to your dx by your dt लिख सकता हूं क्या? यस सर। ओके, vx कितना दे रखा है? 2 दे रखा है ना। dx की वैल्यू कितनी दे रखा है? 2 into I cap। दिस इज योर dx by your dt। तो क्या मैं इसमें से x निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि इक्वेशन लिखना है ना मुझे। इक्वेशन कैसे में लिखोगे? y और x में ही लिखोगे ना इक्वेशन। आप इक्वेशन कैसे लिखोगे बेटा? जैसे 10th क्लास में आपने कोई इक्वेशन लिखा होगा, मैथमेटिक इक्वेशन, यू ऑलवेज राइट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? y एंड x। तो इसमें से मैं x निकाल सकता हूं, तो देखो कैसे निकाल रहा हूं मैं। dx is equals to 2 into dt लिख सकता हूं क्या मैं ऐसा? Yes, Can I sir. write like this? Yes, sir. Now to get the value of x मुझे क्या करना है? Integrating on both the sides। क्यों डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी छोटा पार्ट है, मुझे पूरा बड़ा पार्ट चाहिए। इसका बड़ा पार्ट चाहिए, तो क्या करना है? dx plus dx plus dx plus ऐड करते जाना है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रल ऑफ योर dx कहां से? मान के चलो मैं 0 से गया और फाइनली जा रहा हूँ x। That is equals to your integral 2 into your dt 0 to t। Is it clear? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। एक्सप्लेन इट वंस मोर ना। हाँ ठीक है, ये देखो बेटा, पार्टिकल इज मूविंग इन द XY प्लेन विद a velocity v is equals to 2i cap plus 3x into j cap। x एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 2i। i मतलब x एक्सिस, j मतलब y एक्सिस।
y एक्सिस में दे रखा है 3x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछ रहा है। whenever he is using a word equation मतलब we need to write the relation between x and y, ये बात याद रख लो। equation of a trajectory means we need to write the equation in terms of what, y and x के बीच में कुछ दोस्ती है, उसके बीच में की दोस्ती निकालना है अपने को। तो अब मुझे x एक्सिस में वेलोसिटी मालूम है, तो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला vx is equals to dx by dt। तो vx की वैल्यू कितनी है प्रॉब्लम में, 2 दे रखा है ऑलरेडी, ये vx की वैल्यू है ना, 2 Yes, इंटू sir. i की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, और j इज आल्सो यूनिट वेक्टर, उसकी भी वैल्यू 1 है, और k इज आल्सो यूनिट वेक्टर, k की भी वैल्यू 1 है। तो vx की वैल्यू मैंने 2 इंटू i ले लिया, i की वैल्यू 1 है, 2 इज इक्वल टू dx by dt, और dx को निकालना है तो dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt। सो अब मैं इसका बड़ा पार्ट लेना है, मान के चलो आपने तरबूज है आपके पास, एक छोटा सा पार्ट आपने कट कर लिया, मैं बोला इसका पूरा का पूरा बड़ा पार्ट होना मतलब क्या करोगे, वो जो पार्ट आपने कट कर दिया तो अगर उसको वापस आप लगा दोगे तो क्या मुझे पूरी बॉडी मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। Yes. तो उसी Yes, तरह sir. से यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा बॉडी है, उसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो बड़ा बॉडी मिलेगा, तो मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ फ्रॉम 0 टू x, और ये भी हो गया इंटीग्रल ऑफ 2, तो इंटीग्रल ऑफ dx बनेगा कितना, x, और ये हो गया लिमिट 0 से लेके x तक, दैट इज इक्वल, इसमें 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, इंटीग्रल ऑफ dt इज नथिंग बट ऑफ योर t, लिमिट हो गया 0 से लेके t तक। आप क्या करोगे, x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे, x में ऊपर का लिमिट डालो x, उसके बाद x में नीचे का लिमिट डालो 0, x में मैंने पहले ऊपर वाला डाला फिर नीचे वाला डाला, तो x माइनस 0 आ गया, तो ये हो गया 2 इंटू, इसमें भी t में ऊपर वाली t है तो t डालो, फिर नीचे वाली लेके जाकर t में डालो, माइनस करके ऐसा हो गया, तो x माइनस 0 हो गया x, और t माइनस 0 हो गया t, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 2t। तो आई गॉट द रिलेशन बिटवीन x एंड t, बट मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन x एंड y, मुझे चाहिए रिलेशन बिटवीन x एंड y, तो नाउ यहाँ पर x आ गया मेरे पास 2 इंटू टी। अब मेरे पास क्या vy की भी वैल्यू मालूम है, vy की वैल्यू मालूम कितनी है बेटा, 3x है। तो अब देखो वेलोसिटी ऑफ vx, ये आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली करने के लिए जाओगे तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है, ये पूरे स्टेप्स मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में लिख दिया यहाँ पर। अब वेलोसिटी एंड vy कैसे लिखोगे बेटा, जल्दी से बताओ, dy by dt लिखोगे। vy कितना दिया बेटा, कोई बता सकता है, ये हो गया vy कितना है 3x इंटू जे कैप, तो यहाँ पर मैं 3x डाल लूं, तो ये हो गया 3x, और ये हो गया dy, और ये हो गया dt। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो dy को बाहर ला लो, तो dy इज इक्वल्स टू, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dx इंटू योर dt, ठीक है। अब मुझे पूरा का पूरा y चाहिए, तो इसको आप क्या करो, इंटीग्रेट कर लो, फ्रॉम व्हाट लिमिट बेटा, 0 से लेके y तक, और ये कहां से जाओगे, 0 से लेके t तक, तो इंटीग्रल ऑफ dy कितना हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, लिमिट भी डाल दोगे तो वही आ जाएगा, 3 बाहर है, x की वैल्यू ऑलरेडी आई मेरे पास, कितनी है बेटा 2t, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 3 इंटू 2 इंटू t इंटू dt, कैसे लिख सकता हूं मैं, 0 से लेके t तक, ये x की वैल्यू तो मुझे आई ना बेटा, x की वैल्यू लिखा के इसमें डाल दो, तो x की वैल्यू लिखा के डाल दिया तो कितना बन गया 2 इंटू t, तो ये बन गया मेरे पास y इज इक्वल्स टू, so this is the integral 3 into 2 is nothing but 6 into t into your dt, ये हो गया लिमिट 0 से लेके t तक, और 6 कांस्टेंट है एक नंबर, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, तो बाहर हो गया, ये इंटीग्रल ऑफ योर t into your dt है। फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ योर इंटीग्रेशन, इंटीग्रल ऑफ t into dt कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ गुड है x to the power of your n into your dx is equal to from your x into your n plus 1 divided by n plus 1, तो यहाँ पर हो गया इंटीग्रल ऑफ t to the power of 1 into dt, तो ये हो गया मेरे पास t 1 plus 1 divided by 1 plus 1, तो ये हो गया मेरे पास t square divided by 2, तो ये हो गया y is equals to 6 into this one is your t square divided by 2, तो ये हो गया 2 1s are, this one is your 2 3s are, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई 3 into t square, आया सभी को। अब मुझे y भी t के अंदर आया और x भी t के अंदर आया, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और 2 में दोनों में कॉमन क्या है बेटा, t है, t को एलिमिनेट करो, t को एलिमिनेट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 आई कैन राइट कितना था बेटा इक्वेशन 1, बताओ इक्वेशन 1 क्या था बताओ जल्दी से, x इज इक्वल्स टू 2t, तो t लिख सकता हूं मैं कितना, t इज इक्वल्स टू क्या x by 2 लिख सकता हूं, तो सब्स्टिट्यूट 3 in your 2, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू 3, t को लेके जाके इसमें डाल दो, तो ये हो गया x by 2 होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू दिस वन विल बिकम 3 into x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गई रिलेशन बिटवीन द x and y, एंड दिस इज नोन एज ऑफ योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। बात समझ में आई?
कभी पूछा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए ट्रैजेक्टरी, मतलब क्या, y और x के बीच की दोस्ती, y और x के बीच की दोस्ती को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोल रहे हैं। ये हो गया इस तरह का मेथड टू डू द प्रॉब्लम। मैंने इस मेथड को बहुत डिटेल में कराया, 2 प्रॉब्लम, आप 2-3 बार अगर करोगे ना इस मॉडल को, आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा होता। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? यस सर। इज द इंट्रोडक्शन क्लियर फॉर एवरीवन? तो वो था अपना प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन Yes, की sir. कोई भी बॉडी अगर 2 डायमेंशन में मूव कर रही है तो उसको हम लोग 2D डायमेंशन में बोलेंगे। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, कुछ डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir, clear. Yes, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन ले लो यहाँ पर, देखो और एक क्वेश्चन क्या दिया मैंने, नेक्स्ट वन, ट्रैजेक्टरी ऑफ 2D डायमेंशन। ट्रैजेक्टरी मतलब ये पाथ, y और x के बीच की दोस्ती को मैंने क्या बोल रहा हूँ, ट्रैजेक्टरी बोल रहा हूँ। तो y एंड x के बीच एक पॉइंट है जो x पे भी लाई कर रहा है, y पे भी लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये तो बात कहानी समझ में आया ना, ये पूरा आप झंझट करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो मैंने आप लोग को पूरी कहानी आप को एक प्रॉब्लम में बता दी। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या, रिलेशन बिटवीन y एंड x, रिलेशन बिटवीन y एंड x इज नोन एज योर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यहाँ पर वैसा वाला ही एक मैंने फॉर्म प्रॉब्लम दिया, तो ये आप लोग कर लोगे ना, ये वाला कर लोगे आप? ये सेम क्वेश्चन है, मैंने Yes, सिर्फ sir, आप डाटा ग्रुप चेंज में किया डाल था दो यहाँ पर। तो इसको हाँ मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, करा हुआ ही है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप सिर्फ क्वेश्चन लेके प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे ना वैसे ही करके उन दोनों के बीच में इक्वेशन ले आइए, आपको आराम से निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है ना? Yes, कर sir. लोगे ना सभी Yes, लोग? sir. yes, sir. Okay. चलो वेरी गुड। ओके, अब आते हैं हम लोग एक्चुअल चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब क्या, ए बॉडी प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल थीटा। देखो यहाँ पर एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, मैंने एक बॉडी को यहाँ पर से फेंका, ओके, विद इन वेलोसिटी यू, मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। जैसा आप पढ़ रहे हो बेसिकली, घर में आपके भाई बहन को सता रहे हैं या गड़बड़ कर रहे हैं, तो आप सडनली क्या करोगे, पेन लेके ऐसा फेंक दोगे, या मे भी बुक निकाल के ऐसा फेंक दोगे, या मे भी जो भी हाथ में छोटी सी चीज है डराने के लिए ऐसा फेंक दोगे ना, तो वी विल बी प्रोजेक्टिंग दैट बॉडी विद अ सर्टेन एंगल। एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं मारोगे, क्योंकि आप मारना नहीं चाह रहे थे, आप इंटेंशनली उनको बाहर भगाना चाह रहे, तो विल ट्राई टू थ्रो दैट बॉडी beside them or maybe nearer by them so that they can get attentive. So any body which is being projected making an angle theta with horizontal other than 90 degrees को छोड़ के कोई भी एंगल पे अगर आपने एक बॉडी को फेंका तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। अगर ग्राउंड पे बैठ के फेंक रहे हो तो उसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल बोलोगे। जैसा अभी आपकी पोजीशन है, मान के चलो अगर आप पलंग पे बैठ के आप क्लास सुन रहे हो, पलंग पे से अगर ऊपर ग्राउंड पे फेंक रहे हो तो दैट इज नॉट कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन। अगर आप जमीन पे बैठे हो, जमीन पे से कोई बॉडी और एक पार्ट जमीन के ऊपर ही फेंक रहे हो, then that is called as of your ground to ground projectile. अगर आप कुर्सी पे बैठे हो या टावर पे बैठे हो या आपके पलंग पे बैठे हो या आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, वहां से अगर कोई बॉडी आपको फेंक रहे हो, दैट इज द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट टू द ग्राउंड। उसका कॉन्सेप्ट फिर अलग से हो जाएगा। तो ग्राउंड से ग्राउंड अगर जा रहे हैं, जैसे हिटिंग ऑफ योर बॉल बाय क्रिकेटर, दैट इज योर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। जैसा बॉलिंग करता है कोई बॉलर और बैट्समैन हिट करता है, तो दैट इज अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पार्टिकुलेशन। आई होप यू गॉट ए क्लैरिटी इन दिस वन बेटा। So body which is been projected making an angle theta with an horizontal other than 90 degrees. अगर exactly 90 degrees डाले तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? Vertically. अगर बोल रहे सर आपने बोला 90 डिग्रीज को छोड़ के, अगर मैं 90 डिग्रीज पे ही डाला, यानी कहां पर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके फिर जितनी ऊपर गया फिर उतना ही नीचे आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा, 0, है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है चलो। और एक देखो प्रोजेक्टाइल्स में एवरी टाइम यू नीड टू रिमेंबर दैट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होता है। ये ब्लाइंडली आपको याद रखो। फिलहाल प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि आपने बॉडी कहां पर फेंकी है, आपने बॉडी कहां पर फेंकी है, ग्रेविटी के अंदर फेंका है, तो उसके पास ग्रेविटी होगी अपोजिट टू ग्रेविटी। आप अर्थ से ऊपर फेंक रहे हो, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू वाई कितना हो जाएगा, -g आएगा। क्लियर है? एक्सेलरेशन ड्यू टू वाई क्या आएगा बेटा, -g आएगा। ये क्लियर है सभी को? प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा -g। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? अब देखो मैंने यहां से एक बॉडी को फेंका विद ए वेलोसिटी u,
जैसे मैंने फेंका, आई एम ट्राइंग टू मेक एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी बेटा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जहां पर थीटा है वो cos थीटा बन जाएगा, तो ux will become u cos theta and uy will become for me u sin theta. Is that clear? Yes, Is it sir. clear? Yes, sir. अब देखो, ये बॉडी अपने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया 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 गया, एक पॉइंट आएगा जहां पर वो मैक्सिमम तक चले जाएगा। तो यहां से यहां तक ऊपर जाने वाले टाइम को हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर है? क्लियर है? हाईएस्ट पोजीशन के पास वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है बेटा? एट हाईएस्ट पोजीशन वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है, 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर वहां से फिर वो हॉरिजॉन्टली ऐसा प्रोजेक्ट होके फिर ग्राउंड पे आएगा। इज इट क्लियर? तो ये एट हाईएस्ट पोजीशन जो वेलोसिटी आती है बेटा vx, that is exactly equal to ux. ये बात याद रख लो। at the highest point of your projectile, at the highest point of your projectile part of relation, at highest position के पास जो भी horizontal velocity होती है ना, that is exactly equal to the horizontal velocity. That is the reason vx is equal to ux, that will be equal to u cos theta. क्लियर है? और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस गिवन पार्टिकल। क्लियर है? तो जब आपने कोई बॉडी फेंकी विद एन एंगल थीटा, तो ये ऊपर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, मैक्सिमम होगा, फिर वहां से फिर कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, फिर फाइनल 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? कोई बता सकता है? Range. ये ऊपर गया फिर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। 0. ऊपर के लिए इक्वेशन है ना बेटा, ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉडी विच कैन गो। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेंज बोल रहे हैं। क्लियर है सभी को ये? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, sir. ठीक है ना? तो इन ए प्रोजेक्टाइल वी आर गेटिंग मैक्सिमम हाइट, वी आर गेटिंग द रेंज हियर राइट नाउ फॉर द गिवन कंडीशन। ठीक है ना? अगर ये बॉडी यहाँ से जाके फिर वापस ग्राउंड पे ही आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 0 0 0, क्योंकि जब ऊपर गए 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 तो ये वैल्यू भी क्या हुआ? ऊपर बड़ा 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 मैक्सिमम हुआ, फिर ऊपर से जब नीचे आ रहा तो फिर ऊपर से अब नीचे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज राइट नाउ हाउ मच फॉर मी? 0। क्लियर है सभी को? Yes, yes sir. sir इज इट क्लियर फॉर मी? इज इट क्लियर? Yes, sir. टोटल प्रोजेक्टाइल के लिए ये हो गया रेंज, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। व्हेन यू प्रोजेक्ट ए बॉडी विद ए एंगल थीटा, उसको रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल में आ जाएगा u sin थीटा। एंड एट हाईएस्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना है, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 Zero. अंडा 0। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन इज 0। वी हैव ओनली द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx, एंड दैट vx विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू योर ux, दैट इज नथिंग बट u cos थीटा। और इसमें हम लोग याद रखना क्या है? Sir, एक्सेलरेशन, horizontal हॉरिजॉन्टल velocity will be- एक्सेलरेशन। क्या बेटा? horizontal velocity हमेशा constant रहती सो हाँ, प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पर भी आओ वही होगा, यहाँ पर भी आओ वही होगा, यहाँ पर भी आओ वही होगा। okay क्यों thank पूछो? you. क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है ना। अब कोई भी इक्वेशन लगाओगे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओगे v इज इक्वल्स टू u प्लस ऑफ योर at। अब बोलोगे v इज इक्वल्स, ये हो गया ux, ये भी हो गया vx, और ये प्लस ये हो गया ax इनटू टाइम। तो x तो बड़ा 0 है, तो ये तो 0 हो गया, तो vx तो ux के बराबर हो गया ना पापा। yes sir thank you sir क्लियर है? कभी भी throughout the projectile vx will always be equal to your how much beta? u cos theta, और vertical velocity at highest point will be the 0. Is it clear? Is it clear? अगर यहाँ Yes. पर बॉडी है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v आएगी, और इसका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगा vx, और इसका वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगा vy। अगर बॉडी यहाँ पर है, मान के चलो इफ द बॉडी इज समवेयर हियर राइट नाउ, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगी v, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ जाएगी vx, और ये वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी vy। क्लियर है? v कैसे लिखोगे बेटा? v बार विल बी इक्वल टू योर vx इनटू योर i कैप प्लस vy इनटू j कैप, क्योंकि 2D डायमेंशन है ना बेटा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. क्लियर है Yes, सभी sir. को? चलो वेरी गुड। तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोग को अभी क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर एक बार लिख देता हूं मैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी क्या होता है बेटा? u cos थीटा होता है, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है? बड़ा अंडा होता है। uy वैल्यू कितनी होती है बेटा?
uy वैल्यू होती है u sin थीटा, और एक्सिलरेशन अलोंग y एक्सिस कितना होता है बेटा, नेगेटिव ऑफ योर माइनस जी। इसको आप लोग दिमाग में बटा लो, पूरा का पूरा चैप्टर बस इसी पे खेल खेलता है, बस यही कॉन्सेप्ट पे पूरी प्रोजेक्टाइल की खेल चलती है बेसिकली। और साइन कन्वेंशन भी देखो बेटा, इसके अंदर अगर मैं साइन कन्वेंशन लिख दूं मैं आपको, तो ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव, और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस। साइन कन्वेंशन देखो बेटा, अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो यू टेक इट एज पॉजिटिव, एंड इस डायरेक्शन में जा रहे हो ऊपर, देन यू टेक इट एज पॉजिटिव, and if you're going in this direction right now, you take it as of your negative, and if you're going in this direction, then you take it as of your negative. Is it clear for everyone? और ये हो गया मेरा origin. Clear है? Yes, sir. चलो equations of motions बता दो जल्दी से। 2D dimension के लिए अगर मैं equations of motion लिख रहा हूँ तो देखो Sx will be equal to your x axis के लिए along x axis, along x axis के अंदर मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं, तो Sx हो जाएगा ux into t plus half into ax into your t square, isn't it? Vx will be equal to your Vx square is equals to Vx square plus of your 2 into your ax into your Sx. The same way Vx will be equal to your ux plus of your ax into your t. Is it clear? ये हो गया कौन से डायरेक्शन में, along x axis। अब मैं जा रहा हूं along y axis, along your y axis, along y axis से क्या हो जाएगा, sy is equals to uy into t plus half into ay into your t square। उसी तरह से vy square is equals to कितना बन जाएगा बेटा, uy square plus 2 into your ay into your sy। उसी तरह से vy कितनी हो जाएगी बेटा, vy is equals to your uy plus ay into your t। अब इसके अंदर ax कितना है बेटा प्रोजेक्टाइल में, जीरो जीरो, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यस ठीक है ना। और y एक्सिस में ये y कितना होगा, माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस जी, यहाँ पर माइनस जी, यहाँ पर माइनस जी। वो क्लियर है ना आपके दिमाग में? यस सर चलो चलो अब चलते हैं पैरामीटर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल्स बेटा। अब देखो मैंने एक बॉडी फेंका विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा, ux हो गया u cos थीटा और uy हो गया u sin थीटा। ऐसा बॉडी गई एट हाईएस्ट पोजीशन पे आ गया तो vy हो गया 0 और एट हाईएस्ट पोजीशन vx विल बी इक्वल टू ux दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। फिर यहाँ से कम होते यहाँ पर आ गया। ऊपर जाने वाले टाइम को हम लोग टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर ऊपर से नीचे वाले आते से टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, उसको टीडी बोलते हैं बेसिकली। तो पूरे प्रोजेक्टाइल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, और यहाँ पूरा टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं पूछ रहा हूँ टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे को टाइम कितना लगेगा। तो मेरे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। तो v को मैंने ले लिया vy, u के ले लिया मैंने uy प्लस ay इंटू टी। vy कितना है बेटा हाईएस्ट पोजीशन के पास, 0, तो 0 डाल दिया। uy कितना है मेरे पास, कभी भी देखो uy कितना है मेरे पास, मैंने अभी यहाँ पर बॉक्स बना के लिखाया था। uy वैल्यू कितनी हो जाएगी, u sin थीटा, तो uy की जगह मैंने क्या डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया u sin थीटा प्लस ay हो गया माइनस जी इंटू टी, प्लस माइनस माइनस, तो u sin थीटा इज इक्वल्स टू u sin थीटा माइनस g इंटू टी। तो टाइम ऑफ असेंट हो गया u इंटू sin थीटा बाई g। उसी तरह से टाइम ऑफ डिसेंट भी u sin थीटा बाई g। क्लियर है सभी को? यस सर सो टाइम ऑफ असेंट u sin थीटा बाई g। और स्ट्रेट लाइन के अंदर थीटा कितना होता है बेटा, 180। ये sin थीटा नहीं आएगा ना, ऊपर जाने के लिए कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास, u बाई जी sin थीटा कितना हो जाएगा, 1। देखो देखो बॉडी अपनी ऊपर फेंका तो ये टीटा जो है ना ऊपर जाते 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 वर्टिकल हुआ। वर्टिकल हुआ मतलब ये टीटा कितना हुआ, 0 हुआ कि 90 हुआ, 90। तो 90 कितना हो जाएगा, u बाई 1 तो टाइम ऑफ असेंट बनेगा u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंट भी बनेगा u बाई जी। u बाई प्रोजेक्टाइल के अंदर u sin थीटा बाई जी आ रहा है और टाइम ऑफ डिसेंट u sin थीटा बाई जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बनेगा बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड कर लो तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया फॉर्मूला t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय
जी। ये बात क्लियर है सभी को? सर वो Yes, फॉर्मूला में Yes, sir. ये